مسلک اعلیٰ حضرت پر ہو. دنیا کے اندر کوئی بھی انسان کسی خطے میں مسلک اعلیٰ حضرت والا ہے سر آنکھوں پر. اور مسلک اعلیٰ حضرت اللہ کے لیے عزت, رسول کے لیے عزت, مومنوں کے لیے عزت. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اس کا مطلب وہاں بھی دیوبندی کے لیے کوئی عزت نہیں, شمائل ندوی کے لیے, جاوید اختر کے لیے کوئی عزت نہیں. اگر ذرہ برابر عزت آپ کے دل میں آئی, you have gone, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے اپنے آپ کو پہچانے, ایمان کو سمجھے. اللہ کے لیے عزت, رسول اللہ کے لیے عزت, مومنوں کے لیے عزت ہو. ظاہر سی بات ہے مومنین کی کیٹیگری ہے, اس میں نمبر 1 پر مومنوں میں اولیاء اعظام آتے ہیں. اور اولیاء اعظام میں تمام ولیوں کے سردار, پیروں کے پیر, روشن ضمیر, سیدنا, سندنا, ماوانا, ملجانا, شیخنا, دلیلنا, حجتنا, شاننا, جاننا, ایماننا, شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے لیے عزت ہے. کیوں عزت ہے؟ کیا آج کوئی ہمارے اس ڈانگی بستی ہے نا, بہت لوگ نام سنا, آپ تو وہ اچھا ہوا 2 کلومیٹر سے اسد بھائی پیدل آئے. میں تقریباً 1 کلومیٹر گاڑی میں ایسے چل کے آیا ہوں جیسے بیل گاڑی. پیدل چلنے والا ہم سے آگے نکل جا رہا تھا. بہرحال ہونا وہی چاہیے جو حضرت نے کہا کہ سسٹم کو سٹرونگ ہونا چاہیے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کیا دانگی بستی میں پھر سے کوئی غوث اعظم پیدا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کے دماغ میں آ رہا نہیں تو غلط. غوث کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ غوث جو حضرت امام حسن بصری سے لے کر امام مہدی تک غوثیت کی کرسی پر فائز ہے, وہ شیخ عبد القادر جیلانی. اور ایک غوث ہوتا ہے ہر زمانے کا ہوتا ہے, جیسے مجدد ہر صدی میں ہوتا ہے نا, ایسی غوث بھی ہر زمانے کا ہوتا ہے. اس غوث کا انتقال ہوتا ہے تو دوسرے غوث کو لایا جاتا ہے, اور یہ لانے کی ڈیوٹی شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے. تو کیا دانگی بستی میں کوئی غوث پیدا ہو سکتا ہے؟ غوث پیدا ہو سکتا ہے. کرنا کیا ہوگا اس کے لیے؟ بس اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جس طرح غوث اعظم ان کے گھر میں پیدا ہوئے جن کے والد کا نام شیخ ابو صالح ہے اور ماں کا نام ام الخیر فاطمہ ہے. اور یہ شیخ ابو صالح اور ام الخیر فاطمہ ایک نام ہے, حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اگر 1 کروڑ روپیہ ملا آپ کو, آپ کیا کریں گے؟ لیفٹ رائٹ دیکھیں گے, کوئی ملا تو ٹھیک, نہیں تو جیب میں ڈال دیں گے. چھو منتر. کبھی غوث نہیں پیدا ہو سکتا آپ کے دل میں. غوث تو بڑی بات ہے, کوئی عالم بھی نہیں پیدا ہو سکتا, کیونکہ جس کی رگوں میں حرام کا خون ہو وہاں عالم نہیں پیدا ہوتا ہے. میں عطلم بعد ذالک زنیم سے سمجھتا ہوں, جس کے نطفہ میں خطا ہو وہ نبی کا گستاخ ہوتا ہے, اور جس کے لقمہ میں خطا ہو وہ ولی کا گستاخ ہوتا ہے. لقمہ میں خطا ہو تو وہ ولی کا گستاخ ہوتا ہے. لہذا آپ تو 1 کروڑ لے کے دائیں بائیں ہو جائیں گے, غوث نہیں پیدا ہوگا. ڈانگی بستی میں اگر چاہتے ہیں کہ کوئی غوث پیدا ہو تو کرنا کیا ہوگا؟ بھوک شدت کی لگی ہو تو بھی حرام نہیں کھائیں گے, اور اگر غلطی سے کھا لے ایپل تو ڈھونڈے یہ ایپل ہے کس کا, یہ سیب کس کا ہے. ڈھونڈتے 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 مل جائے سیب تو سامنے والا بھی سمجھے گا نا سیب کی معافی مانگنے کے لیے ہزاروں قدم چلا ہے. He is not common person, he is important person. کوئی عام آدمی نہیں ہے. مجھے معاف کر دیجئے, سیب میں نے کھا لیا بغیر اجازت کی. نہیں معاف کروں گا. میری اندھی لنگڑی لولھی بیٹی سے شادی کرنی ہوگی. اس نے سوچا I have 2 options. اگر کر لیتا ہوں لنگڑی سے شادی, 50-60 سال کے بعد مر جاؤں گا, حور ملے گی بعد میں. اور اگر اس نے نہیں معاف کیا تو جہنم میں جاؤں گا, حور بھی نہیں ملے گی اور دوزخ میں بھی جاؤں گا. اس لیے یہ 40-50 سال کو ایکسپٹ کر لیتا ہوں. منظور ہے آپ کی لنگڑی بیٹی مجھے, کیونکہ مرنے کے بعد حور ملے گی نا. اور جب لنگڑی بیٹی کے روم میں گئے تو سب سے زیادہ خوبصورت وجہ پتا ہے آپ کو. وجہ ان لوگوں کو پتا ہوگی جو مسجد میں خطبہ سے پہلے تقریر سنتے ہیں امام صاحب. اگر عربی خطبہ سننے کے وقت مسجد میں پہنچتے ہیں تو زندگی بھر جمعے کی نماز پڑھے وہ جاہل کے جاہل رہ جائیں گے, ایک مسئلہ بھی نہیں پتا ہوگا. مجھ سے اچھی تقریر آپ کی مسجد کے امام صاحب کرتے ہیں. سبحان اللہ. میں ایک تقریر کئی جگہ کر لیتا ہوں. آپ کی مسجد کے امام صاحب ہر جمعہ نئی تقریر کرتے ہیں. وہ ہر 11ویں شریف میں سیب کا واقعہ دہراتے ہیں, شیخ ابو صالح کا واقعہ دہراتے ہیں ہر 11ویں شریف میں. جو آدمی تقریر سے پہلے جاتا ہے وہ یہ ضرور واقعہ سنا ہوگا. نیز
ये भी मैं देखता हूँ कि मुझे लोग 40, 50, 60 हजार दे देते हैं, प्लेन से बुलाते, कार भी बेचते हैं। इमाम साहब इतनी अच्छी तकरीर करते हैं, कोई 100 रुपये का मुसाफा करने को तैयार नहीं होता। ये रस्मों रिवाज है, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट फैक्ट। ये भेड़ चाल है, ये इंसानियत चाल नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, क्रिएटिविटी आपके अंदर नहीं है, आपने इस्लाम को समझा ही नहीं। आप हर जुमा मुसाफा करें, अच्छी तकरीर वो करते हैं। अगर आप कहेंगे कि नहीं इमाम साहब मेरे यहाँ आपकी तरह तकरीर नहीं करते, उसका जवाब ये है कि 5000 में तामीर अदबी से तकरीर होगी, फतवा रज़विया से नहीं होगी। वाह 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 वाह। उसके लिए आपको 50,000 देना होगा। जो इंसान आलिम फाजिल मुफ्ती बनता है, आप कहेंगे 50,000 रुपये, 5,000 रुपये में तो नाजरा खाई मिलेगा ना भाई आपको। अगर आप अपनी मस्जिद में आलिम रखना चाहते हैं तो 50,000 रुपये तनख्वाह। फिर देखे ना गुलाम जिलानी का बाप आएगा, ये हकीकत बोल रहा हूं। बड़े खतीब आएंगे, बड़े मुकर्रिर आएंगे, मुजद्दिद को रखे ना अपनी मस्जिद का इमाम, 1 लाख तनख्वाह देना, 2 लाख तनख्वाह देना, फिर तकरीर सुने ना उन। अच्छा, अफसोस ये है कि मस्जिद बनाने का ऐलान हो जाए तो चंद सालों में 5 करोड़ की मस्जिद बन जाएगी, ठीक है। और अगर ये ऐलान करूं कि 50,000 तनख्वाह, 12 लोग खड़े हो जाए इतने बड़े मजमा से, साल में एक बार बारी आएगी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कोई हाथ नहीं उठाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनकलाब मस्जिद से आता है या इमाम से आता है। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। अगर मस्जिद से इनकलाब आता है तो मस्जिद से जाके कहिए ना अल्लाह एक है, तू साबित करके बता, अल्लाह की वहदानियत का दलील दे। मस्जिद खामोश हो जाएगी, नहीं बोलेगी। मस्जिद बोलेगी मैदान महशर, यहाँ मस्जिद साकित है, नातिक नहीं है। आप मस्जिद से जाके पूछे शमाइल नबवी बातिल है या फासिद है या सही है, मस्जिद खामोश हो जाएगी। ये मस्जिद नहीं बताएगी। मेहराब मिंबर साहब, आप तो 50,000 के मकराना से तशरीफ लाए, बताइए वुजू में कितने फराइज है? क्या मिंबर बताएगा? मार्बल का मिंबर, ये वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना नहीं। गेट सागवान की लकड़ी के बने हुए, आप बताइए ना गुस्ल में कितने फराइज है? क्या मस्जिद का गेट बताएगा गुस्ल में 3 फराइज? कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना नहीं। इसका मतलब 5 करोड़ की मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है, मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है, मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है, नतीजा जाहिर है। 5 करोड़ की मस्जिद 50 साल तक डांगी बस्ती में खड़ी हो, एक भी इंसान का अकीदा सुधर नहीं सकता है। और अगर मस्जिद खजूर की शाख, तना, पत्तियों से बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो, तो तारीख बताती है मुक्तदी अबू बकर, उमर, उस्मान और अली पैदा होते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद। लिहाजा मुझसे अच्छी तकरीर मस्जिद के इमाम साहब करते हैं। उन्होंने एप्पल वाली बात भी सुनी होगी, शेख अबू साले वाली बात भी सुनी होगी, मगर ये जुम्मा। अच्छा, कुछ लोग जबकि कॉमन है, मोटरसाइकिल खराब होती है तो दुकान फिक्स है, तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर फिक्स है। अगर मसले की जरूरत पड़े, रूह बीमार हो जाए तो आलिम भी फिक्स कर ले, सीधे नंबर डायल करें, मुफ्ती साहब इस मसले का जवाब। मुफ्ती साहब गुस्सा भी आता है, बहुत फोन लगा रहा है, बार बार फोन लगा रहा है, तो अब क्या करना है आपको? इट्स वेरी सिंपल, सीधे फोन पे में जाके 2000 रुपये फोन पे मारे। शेख सादी फरमाते आलिम रा जर बेदेहता बिस्यार खानदान। जब हर चीज मोटरसाइकिल में हाथ लगाने वाला मैकेनिक 50 से 100 रुपया चार्ज करता है सिर्फ हाथ लगाने का, तो रूह के इलाज के लिए जो हमें नबी की बात 1400 साल पहले जो नबी ने बताया, वो बात अगर आज का आलिम बता रहा है, महीने में 2000 रुपया देकर ईमान की हिफाजत कर रहा है, तो ये सस्ता सादा नहीं, बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत अहम है। और अगर किसी के दिमाग में ये आता कि सब दीन का कारोबार पैसे से, हाँ भाई, हदीस शरीफ में आया दीन दिनारो दिरहम से चलेगा, फतवा रज़विया में आया कि चलाना चाहिए। जो काबिल आलिम हो उसको काबिल पैसा दे करके उसकी शाया निशान काम पे लगाना चाहिए। जो मुनाजिर हो उसको माकूल पैसा दे के मुनाजरे में लगाना चाहिए। जो मुसन्निफ हो उसको बहुत पैसा दे के किताब लिखवाना चाहिए। हर डिपार्टमेंट में हमारे उलमा मौजूद है, जो जिसकी सलाहियत महारत रखते हो उसमें शाया निशान खिदमत करके पैसा दे करके उस काम में लगाया जाए। महीने में
महीने में 1000-2000 का फोन किया आपने, फोन पे अपने फेवरेट फैमिली आलिम को, यकीनन फिर वो कभी नहीं कहेंगे गुस्सा होकर के फोन रख मैं बिजी हूँ, वो मसले का जवाब देंगे। इसका मतलब जिस तरीके से दुनियावी बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर मुतअय्यन है, मैकेनिक मुतअय्यन है, ऐसे ही रूह के इलाज के लिए भी मैकेनिक मुतअय्यन है, आलिम दीन मुतअय्यन है। हर सवाल का जवाब उससे ले और इंशाअल्लाह लाजिम चंद दिनों में आप इनकलाब देख लेंगे। शेख अबू सालेह ने ये कहा कि लंगड़ी बेटी से शादी कर तो माफ करूंगा। उन्होंने सोचा अगर कबूल कर लेता हूं चंद साल की जिंदगी, वरना जन्नत से भी महरूम, हूर से महरूम, शादी हो जाती है। अब तारीख में ये आया है, आपके इमाम ने ये बताया है, वो लंगड़ी इसलिए कि उसके कदम ने कभी गुनाह नहीं किया, गूंगी इसलिए कानों ने कभी गलत सुना नहीं, बहरी इसलिए कानों ने गलत सुना नहीं, गूंगी इसलिए कभी किसी की गीबत नहीं की, लंगा अपाहिज डिसेबल इसलिए, लूल्ही इसलिए कि हाथों ने गलत काम नहीं किया। बात समझ में आ गई। माँ भी नेक थी, बाप भी नेक था। अब जो बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से पहले ही प्यारे मुस्तफा ख्वाब में आ जाते हैं। यही जहन को रोक दे और अब जरा अपनी शादी पे नजरसानी कर ले। हमारी बेटी जवान हो गई है, मुझे अच्छा लड़का चाहिए। अपने दोस्तों को फोन किया, देखिएगा जरा जो कोई एजुकेटेड लड़का हो। ये भाई साहब एजुकेटेड से क्या मुराद है? ये कोका वाला एजुकेशन मुराद है क्या? ABCD वाला एजुकेशन मुराद है क्या? ट्विंकल ट्विंकल वाला एजुकेशन मुराद है क्या? जोनी जोनी यस पापा वाला मुराद ले रहे हैं क्या? रेन रेन गो अवे वाला मुराद ले रहे हैं क्या? अगर ये वाली लाइन मुराद ले रहे हैं तो इंसान जावेद अख्तर बन सकता है, और अगर अलिफ बा तासा मुराद ले रहे हैं तो जावेद अख्तर नहीं मुफ्ती अख्तर बन जाएगा, मुफ्ती अख्तर बन जाएगा। इसलिए कभी भी एजुकेशन का मेयार ये स्कूल कॉन्वेंट से मत लगाइएगा। ये देखिएगा दीन की तालीम कितनी स्ट्रॉन्ग है। कुरान शरीफ माना के साथ में पढ़ना जानती कि नहीं, सिर्फ अरबी नहीं। अगर कोई कहता है कुरान पढ़ना दीनी एजुकेशन है, दैट इज टोटली रॉन्ग। इस्लामिक एजुकेशन, रीडिंग होली कुरान, दैट इज नॉट इस्लामिक एजुकेशन। अंडरस्टैंडिंग होली कुरान, दैट इज ट्रू इस्लामिक एजुकेशन। बहुत सारी माँ और बहनें हैं, जब लड़का देखने के लिए लड़के वाले आते हैं, आपकी बच्ची दीनी तालीम, बोले हाँ है ना दीनी तालीम, क्या पढ़ी? बोले कुरान शरीफ 10 बार पढ़ी है। बहन 10 बार नहीं 100 बार भी पढ़ ली तो ये दीनी तालीम नहीं है। माना कितनी बार पढ़ी है, कंजुल ईमान कितनी बार पढ़ी है, अनवार शरीयत कितनी बार पढ़ी है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अल्लाह एक है, अनवार शरीयत समझ में आएगी आपको, कुल हु अल्लाहु अहद नहीं समझ में आएगा। इसलिए मीनिंग बहुत जरूरी है। दूसरी बात, लानत है उन लोगों पर जो शादी से पहले ये देखते हैं मेरा लड़का डॉक्टर है, लड़की भी डॉक्टर होनी चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, मेरा लड़का टीचर है, लड़की भी टीचर होनी चाहिए। लानतुल्लाहि अलैहि, मेरा लड़का गवर्नमेंट सर्वेंट है, लड़की भी गवर्नमेंट सर्वेंट होनी चाहिए। लानत है ऐसे मर्दों पर। मर्द पर कमाई वाजिब है। आपने निकाह में क्या पढ़ा है? सिक्के रायजुल अलावा नानो नफका के दैन महर 7786। क्या आपने कबूल किया? हाँ कबूल है। एक ही बार कहा कबूल है, निकाह हो जाता है। दूसरी बार कहना जरूरी नहीं है, वो तासीसन नहीं ताकीदन है। एक बार कहा कबूल है, निकाह हो गया। और कहा क्या? अलावा नानो नफका के। ये नानो नफका का मतलब क्या होता है भाई साहब? मतलब ये साड़ी, कुर्ती, सलवार, मेकअप, ओढ़नी, खाना पीना, सकना, मकान, चावल, रोटी, गेहूं, सब कुछ मर्द पे वाजिब है। जो ही कहा कबूल है, मर्द पे वाजिब हो जाता। एग्रीमेंट निकाह में ये कर रहे हैं कि सब कुछ मुझ पे वाजिब है और कमाओ बीवी तलाश रहे हैं। क्या ये झूठ नहीं है? आप टीचर बीवी तलाश रहे हैं, क्या ये किस्म नहीं है? आप डॉक्टर बीवी तलाश कर रहे हैं, क्या ये झूठ नहीं है? आप गवर्नमेंट सर्वेंट बीवी तलाश रहे हैं, क्या ये झूठ नहीं है? इसका मतलब ये हुआ जो बीवी की कमाई खाता है कहीं ना कहीं मर्दानगी में कमजोरी है। वो एग्रीमेंट में तो ये कहा था अलावा नानो नफका के, नीज वो भी नामर्द है जो शादी से पहले 5 लाख ले लेता है, 10 लाख ले लेता है। शादी में तो आपने ये कहा अलावा नानो नफका के, मतलब रोटी आप खिलाएंगे, चावल आप खिलाएंगे, मकान आप देंगे। 5 लाख लेकर के जब आए हैं
जहेज में, तो 5 साल नानो नफ्का तो बीवी का खाया आपने। फिर अर्रिजाल क़व्वामून अलन निसा कहाँ हुआ? या अन्निसा व क़व्वामा अलन रिजाल हो गया। इसलिए निजाम दरहम बरहम होता है। ऐसे घर में कभी कोई गौस नहीं पैदा हो सकता, कभी कोई आलिम नहीं पैदा हो सकता। अगर आप ये चाहते हैं आपके यहाँ कोई नेक और साले बच्ची